بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کارڈک سینٹر بہاولپور کے 18 ڈاکٹرز اور نرسز کی ٹیسٹ رپورٹس نیگیٹو آ گئیں۔ کورونا کا شکار ہونے والے ڈاکٹر ساجد فاروق نے بھی کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ کارڈک سینٹر کے 13 ڈاکٹرز اور 5 نرسز کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے ہیں۔ کارڈک سینٹر میں کام کرنے والے 2 ڈاکٹرز میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد عملے کے 18 افراد کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے تھے، جو تمام کے تمام نیگیٹو آئے ہیں۔ کورونا کا شکار ہونے والے ڈاکٹر ساجد فاروق نے بھی کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ڈاکٹر ساجد فاروق کا 7 روز بعد ٹیسٹ کیا گیا ہے، جو کہ نیگیٹو آیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے جن لوگوں کو کوئی ایمرجنسی نہیں، وہ غیر ضروری طور پر اسپتال نہ آئیں۔ اور رحیم میاں خان میں کورونا سے متاثرہ 2 مریض کورونا کو شکست دے کر صحت مند ہو گئے۔ صحت مند مریضوں کی تعداد 84 ہو گئی۔ لیاقت پور سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ بھی منفی آئے۔ ایڈز، ٹی بی مریض اور حاملہ خواتین کے کورونا ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے۔ رحیم میاں خان میں 119 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ کورونا وائرس کا شکار مریض تیزی سے صحت مند ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 11 مریضوں کی پہلی رپورٹ بھی منفی آ چکی ہے، جبکہ کورونا وائرس ایمرجنسی میں کام کرنے والے 153 پولیس اہلکاروں کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے تھے، جن میں سے لیاقت پور سے تعلق رکھنے والے 34 پولیس اہلکاروں کے نمونے منفی آئے ہیں۔ 25 ڈسٹرکٹ جیل اسیران اور لیاقت پور سے تعلق رکھنے والے 6 ریسکیو اہلکاروں کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں سے تعلق پر 525 افراد کے نمونے بھجوائے گئے تھے، جن میں سے 359 کے منفی اور 166 افراد کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار ہے۔ فیلڈ اسپتال شیخ خلیفہ الائیڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں کورونا وائرس کے 8، قرنطینہ مرکز اسلامی یونیورسٹی میں 22 مریض اور 17 مشتبہ افراد موجود ہیں۔ ٹی ایچ کیو صادق آباد میں کورونا وائرس کے 16 مشتبہ مریض اور لیاقت پور میں کورونا وائرس کا متاثرہ 1 مریض زیر علاج ہے۔ کورونا وائرس کا شکار ہو کر 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ میاں والی میں کورونا کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ 20 مریضوں میں سے 19 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر قمروشانی میں موجود ایک اور مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ تاحال ٹی ایچ کیو اسپتال عیسیٰ خیل میں کورونا کا 1 مریض موجود ہے۔ ہیلتھ انتظامیہ کے مطابق عیسیٰ خیل میں موجود مریض کا 1 ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے۔ اگلے 4 روز بعد دوبارہ ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ دوسرا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آئے گا۔ میاں والی میں 14 اپریل کے بعد تاحال کورونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ خبر دیں گے آپ کو کہروڑ پکھا سے، جہاں پر پولیس کو 2 لاکھ روپے رشوت دے کر قرنطینہ سے فرار ہونے والا مریض اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ کورونا وائرس کے مریض کو پیمز اسپتال اسلام آباد داخل کرا دیا گیا۔ ڈیوٹی پر تعینات 5 پولیس اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 49 تبلیغی ارکان کو قرنطینہ کیا گیا تھا۔ باجوڑ ایجنسی کا رہائشی وقاص وہاں سے مبینہ طور پر 2 لاکھ روپے دے کر فرار ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہروڑ پکا سے، جہاں پر پولیس کو 2 لاکھ روپے رشوت دے کر قرنطینہ سے فرار ہونے والا مریض اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور عید پر نئے نوٹوں کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ کورونا کے باعث اسٹیٹ بینک نے نئے نوٹوں کا اجرا سے انکار کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پابندی اسٹیٹ بینک کی کووڈ-19 کمیٹی کے سربراہ ڈی جی بینکنگ کی جانب سے لگائی گئی ہے۔ نئے نوٹوں کی عدم دستیابی عام عوام، بینک ملازمین اور سابق ملازمین پر عائد ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں عید پر نئے نوٹوں کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ کورونا کے باعث اسٹیٹ بینک نے نئے نوٹوں کا اجرا سے انکار کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پابندی اسٹیٹ بینک کی کووڈ-19 کمیٹی کے سربراہ ڈی جی بینکنگ کی جانب سے لگائی گئی۔ اور ملتان میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں لمبی اڑان، سرکاری نرخوں میں 30 روپے کلو اضافہ ہو گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اقبال صادق۔ تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی برائلر گوشت کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا، مگر آج 5 نہیں، 10 نہیں، 20 بھی نہیں، پورے 30 روپے کا ایک ہی روز میں فی کلو اضافہ ہو گیا، جس کے بعد برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 250 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ گاہک کو یہ گوشت 250 روپے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ دکاندار کہتے ہیں 10 روپے مارجن کے ساتھ وہ 260 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔ گوشت ہمارے کو 250 روپے آج پڑ رہا ہے، 10 روپے مارجن رکھتے ہیں ہم، 260 روپے کلو ہم بیچ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، گوشت ایک دم قیمتوں میں بڑھتا جا رہا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن لے۔ ایک ہفتے میں برائلر گوشت کی قیمت 60 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ زندہ برائلر مرغی کی قیمت 188، سپلائی ریٹ 183 اور پولٹری فارم ریٹ 175 روپے ہو گیا ہے۔ کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔
डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 से 50 रुपए इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 270 से 280 में फरोख्त होने लगा है। डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 270 रुपए से 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि एक जानिब लॉकडाउन के बायस कारोबार नहीं, जबकि दूसरी जानिब महंगाई में इजाफे ने परेशान कर दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। रुक करते हैं लिया का, जहां पर महंगाई बढ़ने का सिलसिला रुक न सका। चिकन के नर्ख में एक ही दिन में 35 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। लिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गफलत के बायस खाने पीने की अशिया में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चिकन की कीमत में एक ही दिन में 35 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। कल तक चिकन 216 रुपए तक फरोख्त होता रहा, मगर आज वही कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जिससे शहरी परेशान हो गए। चिकन खरीदने आई खातून कीमत सुनकर आपदीदा हो गई। खातून का कहना था कि पहले ही लॉकडाउन के बायस उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, अब महंगाई में इजाफे के बायस वो शदीद परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया महंगाई पर कंट्रोल करे, वरना एहतजाज किया जाएगा। खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी भी महंगाई को कम न कर सकी। फलों और सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सब्जी मंडी के अफसरान के दौरे भी सूदमंद साबित न हो सके। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है, मगर शहरी कहते हैं कि डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आई। फलों और सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सब्जी मंडी में सेब 200 रुपए फी किलो, खजूर 400 रुपए फी किलो, अमरूद 140 रुपए फी किलो, तरबूज 50 रुपए फी किलो, खरबूजा 40 रुपए फी किलो और केला 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त हुआ। शहरी कहते हैं कि अफसरान सुबह शाम सब्जी मंडी के दौरे करते हैं, मगर अफसरान के दौरे भी रायगां दिखाई दे रहे हैं, कीमतें मजीद बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की कीमतें कम होंगी तो ओपन मार्केट में कमी आएगी। आपको बताएं कि बहावलपुर में वजीर आजम इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए मेंबरान असम्बली से मुलाकात और खिताब। लॉकडाउन में नरमी करने और बेरोजगार होने वाले अफराद को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला किया गया। बहावलपुर में वजीर आजम पाकिस्तान ने डिवीजन भर के मेंबरान असम्बली के साथ वीडियो लिंक खिताब किया। MP समीउल्लाह चौधरी, मखदूम इफ्तिखार गिलानी, गजीन अब्बासी समेत डिवीजन भर के MPA और MNAs ने शिरकत की। वजीर आजम ने लॉकडाउन में नरमी करने की यकीन दहानी कराई। पार्लियामेंटेरियन से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि एहसास प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। अब बेरोजगारों को खुसूसी अलाउंस दिए जाएंगे। तमाम मेंबरान असम्बली अपने हलकों में लोगों को लॉकडाउन बारे आगाही दें। जिन लोगों से बेरोजगार फॉर्म पुर नहीं हो पा रहे, उनकी मदद के लिए रजाकारों की ड्यूटियां लगाई जाएं। लॉकडाउन के बाद नादरा के दफातर तो खोल दिए गए, मगर हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। कचहरी चौक पर वाक़े नादरा दफ्तर के बाहर साइलिन का हजूम लग गया। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। नादरा की जानिब से आज से तमाम दफातर खोल दिए गए, लेकिन आवाम के लिए दफातर के बाहर किसी किस्म के कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। कचहरी चौक पर वाक़िया नादरा दफ्तर के बाहर साइलिन का हजूम है। नादरा की जानिब से साइलिन के माबैन समाजी फासले के मुतालिक कोई इकदाम नहीं किए गए। नादरा दफ्तर में दाखिले के लिए दर्जा हरारत नापने और हाथों को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा। नादरा के दफ्तर से जी कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये आज काफी दिनों के बाद दफ्तर खुला और अभी भी आप रश देख लें कि इंतजामिया जो नादरा की वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। साइलिन का कहना है कि अवाम की हिफाजत के लिए नादरा की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए गए। लंबी कतार में कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। अब नादरा दफ्तर आए खड़े हैं। नादरा दफ्तर में अब रश इतना है कि बुजुर्ग आदमी है कि अब कैसे ये सारा दिन ये खड़ी रहे और कैसे ये करे। साइलिन की जानिब से मुतालबा किया गया कि नादरा को अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। रुख करते हैं बहावलपुर का, वहां पर भी नादरा के दफातर खुल गए। शहरियों का शदीद रश लग गया। कहीं लंबी लाइनें तो कहीं शहरियों की धक्कम पेल। नादरा अमले और साइलिन के दरमियान तलखलामी भी हुई। समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल दरामद, ना ही दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। नादरा का अमला शदीद रश के सामने बेबस रहा। दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी नादरा के दफातर तो खुल गए, मगर नादरा का अमला साइलिन के सामने बेबस नजर आया।
دفتروں کے باہر شہریوں کا رش اور دھکم پیل بھی دن بھر جاری رہی، جس کے باعث کام شروع نہ ہو سکا۔ شدید رش اور دھکم پیل کے باعث صورتحال نادرا عملے کے کنٹرول سے باہر نظر آئی۔ نادرا دفاتر کے بعد کہیں لمبی لائنیں تو کہیں شہریوں کی مٹ بھیڑ سی صورتحال گمبھیر رہی۔ دفتروں کے باہر آنے والے سائلین ساری صورتحال کا ذمہ دار نادرا عملے کو قرار دیتے رہے۔ نادرا عملے کی جانب سے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی رہی، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ متعدد سائلین اور نادرا عملے کے درمیان تلخ کلامی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ نادرا دفاتر کے باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ بھی شدید رش کے سامنے بے بس نظر آئے۔ ڈی جی خان میں شہریوں کی بڑی تعداد نادرا دفاتر پہنچ گئی۔ سماجی فاصلوں اور کورونا سے بچاؤ کے لیے دفتر کے اندر تو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی، لیکن دفاتر کے باہر کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ نادرا کے دفتر کھلتے ہی عوام کا رش بڑھ گیا۔ شناختی کارڈ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے عوام نادرا آفس امڑ آئی، جس کے باعث کورونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ نادرا آفس کے باہر سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ نادرا آفس میں مسائل کو کم کرنے کے لیے اور کورونا کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کاؤنٹرز میں اضافہ اور سوشل ڈسٹینس کے لیے منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ بہاولپور میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم تقسیم کرنے کا معاملہ مختلف سینٹرز پر رقم حاصل کرنے والی خواتین اور مرد دربدر رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میسج ملنے کے باوجود بھی سینٹر پر موجود عملہ کہتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آئے۔ بہاولپور میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم تقسیم کرنے کا معاملہ 8171 پر میسج کرنے والے شہریوں کو رقم موصول کرنے کا میسج تو موصول ہو گیا، لیکن رقم ملنا خواب بن کر رہ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میسج ملنے کے باوجود بھی سینٹر پر موجود عملہ کہتا ہے آپ کے پیسے نہیں آئے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، شہر کے تمام سینٹرز پر گئے، لیکن میسج آنے کے باوجود رقم نہیں دی جا رہی۔ حکومت میسج وصول کرنے والے شہریوں کو رقم تقسیم کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری جانب سینٹرز پر موجود عملے کا کہنا ہے کہ ہزاروں مستحقین کو میسج موصول ہو چکے ہیں، لیکن حکومت نے مزید تحقیقات کے لیے رقم روک رکھی ہے۔ جیسے ہی رقم ٹرانسفر ہوگی، مستحقین کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ ملتان میں سرکاری بینکوں کے باہر بزرگ پینشنرز کی لائنیں لگ گئیں۔ سرکاری بینکوں میں سٹاف کی کمی اور اے ٹی ایم بند ہونے کی وجہ سے روزہ دار بزرگ شہری کورونا صورتحال میں تپتی دھوپ میں باری کا انتظار کرنے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک۔ ملتان میں بزرگ پینشنرز کا دن بھر برا حال رہا۔ بزرگ پینشنرز اپنی پینشن کی خاطر مارے بینکوں کے باہر چکر لگانے پر مجبور رہے۔ سرکاری بینکوں کے باہر بزرگ پینشنرز کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ سرکاری بینکوں کی اے ٹی ایم بند ہونے سے سرکاری بینکوں کے باہر رش بڑھ گیا۔ رمضان المبارک میں روزہ دار بزرگ شہری بھی لائنوں میں لگے رہے اور سسٹم پر سخت نالا نظر آئے۔ اے ٹی ایم بند ہے، سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں روزے کے ساتھ، بہت پریشانی ہے۔ سرکاری بینکوں میں سٹاف کی کمی اور اے ٹی ایم بند ہونے کی وجہ سے بزرگوں کے مشکلات کا سامنا رہا۔ بینکوں کے باہر مئی کی گرمی میں خواتین پینشنرز بھی لائنوں میں لگی رہیں، جبکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی دیکھنے کو ملی۔ وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ یہ یہاں کہاں گیا جو قانون بنایا ہوا ہے، ایس او پیز کدھر ہے بھائی؟ یہ اب یہاں پہ نہیں ہوتے پورے ایس او پیز، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے لائن، اگر سٹاف ہوتا تو پھر یہ کھڑے ہوتے لائن میں۔ اتنی گرمی میں دیکھیں، رمضان شریف کا مہینہ، کوئی خیال تو ہو۔ سرکاری بینکوں کی برانچز کے باہر بزرگ پینشنرز دھوپ میں اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ اکثر بزرگ شہری بیماری اور لاچاری میں بینکوں کے باہر دھوپ میں تپتے رہے، جبکہ انہی کے ٹیکسوں سے تنخواہ لینے والا بینک کا عملہ اے سی میں بیٹھ کر تاخیر پیدا کرتا رہا۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ اور میاں والی کی تحصیل پپلا کے جنرل پوسٹ آفس میں بزرگ پینشنرز رل گئے۔ پینشنرز کا کہنا ہے کہ کئی روز سے جنرل پوسٹ آفس کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر پینشن سفارش کی بنیادوں پر ہی دی جا رہی ہے۔ میاں والی کے تحصیل پپلا کے جنرل پوسٹ آفس میں بزرگ پینشنرز رل گئے۔ پینشنرز کا کہنا ہے کہ کئی روز سے جنرل پوسٹ آفس کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر پینشن سفارش کی بنیادوں پر دی جا رہی ہے۔ پینشنرز کا یہ بھی الزام ہے کہ کیشیئر پیسے لے کر منظور نظر لوگوں کو جلد پینشن دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کے باعث سماجی فاصلے کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تحصیل پپلا کے جنرل پوسٹ آفس میں بزرگ مرد اور خواتین پینشنرز ایک ہی مقام پر اکٹھے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کے احکامات میں حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔
और खानेवाल में कोरोना वायरस से शहरियों को बचाने के लिए जारी लॉकडाउन में दफा 144 की खुली खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। बैंकों के बाहर लोग एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए। एक जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस से शहरियों को बचाने के लिए लॉकडाउन में मार्केटें बंद की गईं, तो दूसरी जानिब शहरियों को समाजी फासला रखने की आगाही भी दी गई और दूसरी ही जानिब बैंकों के बाहर लोग एक दूसरे से चिपके दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि बैंक अमले की जानिब से हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। बैंकों के बाहर ज्यादातर रश सरकारी मुलाजमीन का दिखाई दे रहा है। मर्द और ख्वातीन दर्जनों की तादाद में बैंक के दरवाजे पर खड़े रहे। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह लेने आए हैं, बैंक की वर्किंग का वक्त बढ़ाया जाए। अब रुख करते हैं अलीपुर का, जहां पर 1.5 माह से जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा शोबा ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुआ। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी से ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और इस शोबे से मुंसलिक दीगर अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर होकर परेशान दिखाई देते हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से फाकों की नौबत आ गई। अलीपुर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान का सामना है। लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। अलीपुर के जनरल बस स्टैंड से रोजाना दर्जनों बसें पाकिस्तान के बड़े शहरों के रूट्स पर रवाना होती थी। सर्विस बंद होने से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ड्राइवर, कंडक्टर, बुकिंग ऑफिस का अमला बेरोजगार है। चूल्हे ठंडे होने से घरों में फाके पड़ गए। हुकूमत की जानिब से कंडक्टर और बसों पर मुलाजमत करने वालों को ताहाल कोई भी इमदादी पैकेज नहीं मिल सका, जिसकी वजह से इंतहाई परेशान दिखाई दिए। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का जरिया माश खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि हुकूमत जहां कोरोना के बायस दूसरे तबकात को इमदादी पैकेज दे रही है, वहीं ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता दिहाड़ीदार लोग हुकूमत की नजरों से ओझल हैं। मुल्तान में जाली ज़राई अद्वियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। 25 लाख रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात पकड़ ली गईं। हुकूमत पंजाब जाली ज़राई अद्वियात और खादों के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग ने थाना मखदूम रशीद की हदूद 6 ट्रिपाई में पुलिस पार्टी के हमरा असलम चंगड़ खान के डेरे पर छापा मारा। तैयार और पैक की गई जाली सैकड़ों बैग खिला बरामद हुआ। लिया में डायरेक्टर जनरल पंजाब सीड कॉरपोरेशन जावेद महमूद भट्टी का फूड सेंटर्स का दौरा। सेंटर्स पर इंतजामात को चेक किया। दौरे के दौरान जावेद महमूद भट्टी ने महकमा खुराक के खरीदारी मराकज करोड़ और हैदर शाह को चेक किया। उन्होंने ऐलान किया कि काश्तकारों की सहूलत के पेश नजर फूड सेंटर इतवार के दिन भी खुले रहेंगे। डीजी सीड ने बताया कि लिया में अब तक मुहिम का 16% टारगेट हासिल किया जा चुका है, जबकि 9 गंदम खरीदारी मराकज पर मुहिम के तहत 53% बारदाना जारी किया जा चुका है। उन्होंने सेंटर पर किसानों को पूरा वजन देने और सरकारी कटौती को यकीनी बनाने की हिदायत की। जावेद महमूद भट्टी ने सेंटर पर रिकॉर्ड और औजान के पैमानों की पड़ताल भी की। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर असफर जिया और एसी करोड़ आसिफ इकबाल भी हमरा थे। आपको बताएं कि मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने किफालत प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया। डीपीओ ने सेंटर्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद का भी मुआयना किया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं, लोगों को किसी सूरत भी इकट्ठा न होने दें, लोगों को एक दूसरे से मुनासिब फासले पर रखें, खुश इखलाक से लाइन बनवाकर नज्म ज़ब्त को यकीनी बनाएं और सेंटर पर आने वाले माजूर और ज़ईफ अफराद की मदद करें। और सियासी अदावत ने मेहनत कश के बेटों पर जिंदगी तंग कर दी। बहावलपुर में साबका काउंसलर मुगीर अहमद का मेहनत कश के बेटों पर बहिमाना तशद्दुद, साथियों के हमरा खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने पर डीपीओ बहावलपुर इन एक्शन, मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे हैं, सियासी अदावत ने मेहनत कश के बेटों पर जिंदगी तंग कर दी। बहावलपुर में साबका काउंसलर मुगीर अहमद का मेहनत कशों के बेटों पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। साथियों के हमरा खूब तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि वीडियो वायरल होने पर डीपीओ बहावलपुर इन एक्शन, मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ये मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सियासी अदावत ने मेहनत कश के बेटों पर जिंदगी तंग कर दी। बहावलपुर में साबिका काउंसलर मुगीर अहमद का मेहनत कश के बेटों पर बहिमाना तशद्दुद, साथियों के हमरा खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने पर डीपीओ बहावलपुर इन एक्शन, मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
बचाओ बच्चा की सेहत न्यूट्रिशन प्रोग्राम दही आवाम को सेहत के हवाले से सहूलियात देने और नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में पंजाब हुकूमत ने तमाम अजला के लिए 5 अरब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बचाओ बच्चा की सेहत प्रोग्राम को जारी रखने और न्यूट्रिशन प्रोग्राम दही आवाम को सेहत की सहूलियात देने सैलरी और नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में 5 अरब 55 करोड़ रुपए जारी हुए। बहावलपुर और डीजी खान के लिए 16 करोड़ से ज्यादा, मुल्तान के लिए 19 करोड़ से ज्यादा के फंड्स और मुलाजमीन की सैलरी के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। ये फंड्स पंजाब भर के अजला के लिए माह अप्रैल के लिए जारी किए गए हैं। और कोरोना वायरस की वजह से नाजायज फायदा उठाने वाले हैकर माफिया से बचने के लिए कैबिनेट डिवीजन ने तमाम इदारों को होशियार कर दिया। हैकर से मुहतात रहने के लिए हिदायतनामा एफबीओ को भी मौसूल हो गया, जिसके मुताबिक हैकर जाली मेल्स के जरिए हसास मालूमात हासिल कर सकते हैं, लिहाजा किसी नामालूम ईमेल की अटैचमेंट को ना खोला जाए। बताया गया है कि कोरोना वायरस की कोई एप्लीकेशन नहीं, इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना की जाए। तस्दीक और तौसीक के लिए बैंकिंग अकाउंट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। लाइसेंस वाला और अपडेट एंटी कोरोना वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली जूस और मिलावटी मसाले तैयार करने वालों के खिलाफ स्पेशल एक्शन। कोहेनूर फूड खाम माल में मुर्दा मक्खियां पाए जाने पर सरबा मुहर 150 लीटर गैर मेयारी जूस तल्फ कर दिया। जूस प्लांट को लेबलिंग न होने, तैयार जूस की तज्जिया रिपोर्ट न होने पर सील किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की सरबराही में जाली जूस प्लांट पर छापा मारा गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जूस प्लांट को लेबलिंग न होने, तैयार जूस की तज्जिया रिपोर्ट न होने पर सील किया गया। जूस प्लांट से मैंगो पल्प और कोहेनूर मैंगो फ्रूट ड्रिंक की सैंपल लेबोरेटरी रवाना कर दिए गए हैं। लिया में अल हबीब फूड्स मिलावटी सुर्ख मिर्च तैयार करने और नाकिस सफाई पर सब मुहर किया गया। मसाला फैक्ट्री दिए गए नोटिस पर अमल न करने और किए गए टेस्ट में मिलावट पाए जाने पर सील किया गया। मजीद कार्रवाइयों के दौरान 340 लीटर मुजरे सेहत दूध, 18 किलो एक्सपायर मसाले और 17 लीटर ड्रिंक्स तल्फ कर दी गई। उनका कहना था कि नाकिस मिलावटी खुराक से मैदे और जिगर की बीमारियां जन्म लेती हैं। मसनूई मिठास से तैयार मशरूबात का इस्तेमाल शुगर, गुर्दों और दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घर के बने खाने को तरजीह दें। मुबारक महीने में पंजाब फूड अथॉरिटी मयारी खुराक के लिए कोशां है। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस, गंदम खरीदारी, डेंगू कंट्रोल और टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन के जायजे के लिए इकदाम। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को सूबे भर के डिवीजन में तैनात कर दिया। हर सेक्रेटरी 2 दिन तक अजला में रहेगा। सूबाई सेक्रेटरी हर डिवीजन में पूरा हफ्ता गुजारेंगे। कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग, सैंपलिंग, टेस्टिंग समेत अस्पताल में जेर इलाज मरीजों और फील्ड अस्पतालों का भी जायजा लेंगे। सूबाई सेक्रेटरी गंदम खरीदारी प्रोसेस, काश्तकारों को दरपेश मसाइल, टिड्डी दल के मुमकिन हमले और उसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेंगे। दूसरी जानिब सूबाई सेक्रेटरी डिवीजन भर में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एक सेक्रेटरी हफ्ते के दौरान एक डिवीजन में गुजारेगा। सेक्रेटरी एनर्जी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर सोमवार और मंगल को बहावलपुर में होंगे, जबकि सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद आमिर जान बुध और जुमेरात को बहावलपुर डिवीजन में फराइज सर अंजाम देंगे। इसी तरह सेक्रेटरी उशर ज़कात आलमगीर अहमद खान जुमा और हफ्ता को बहावलपुर में रहेंगे। और जिला मुल्तान में होने वाली बारिशों के बायस गंदम की खरीदारी का अमल मुतासिर हुआ। 21 लाख बोरी गंदम खरीदारी के हदफ में अब तक सिर्फ 58% गंदम खरीदी जा सकी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वेंस का कहना है कि जिला में मुल्तान में गंदम खरीदारी का हदफ 15 मई तक हासिल कर लिया जाएगा, जबकि किसानों को हदफ का 82% बारदाना जारी कर चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे रसा मलिक। जिला मुल्तान में होने वाली बारिशों के बायस गंदम की खरीदारी का अमल मुतासिर हो रहा है। गंदम खरीदने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वैंस ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि 21 लाख बोरी गंदम खरीदारी के हदफ में अब तक 58% गंदम खरीद ली गई। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के वो 17 सेंटर हैं, पीआर सेंटर हमारे 5 हैं, फ्लैग सेंटर हमारे 12 हैं। कुल टारगेट जो हमारा गंदम का है वो 21,16,280 बोरी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना था कि जिला मुल्तान में गंदम खरीदारी का हदफ 15 मई तक हासिल कर लिया जाएगा। किसानों को हदफ का 82% बारदाना जारी कर चुके हैं। जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकिज पर अब तक 12,30,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। जबरदस्त क्रैक डाउन किया है और मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि वो सारे जो वहाँ पे जो अड्डे इन लोगों ने मुल्तान में बोसन रोड पे
खानेवाल रोड पे, पीरगैब रोड पे, शुजाबाद रोड पे, वो सारे मैं उठवा के गोदामों में ले गया हूँ। मुमताज वैंस का मजीद कहना था कि जिला मुल्तान में सड़क किनारे लगने वाले गंदम खरीदारी के स्टॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। जिला मुल्तान पर निजी सतह पर जखीरा की गई हजारों मन गंदम भी सेंटर्स पर पहुंचा दी गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और बहावलपुर के गुंजान आबाद इलाके यजमान रोड इस्लामी कॉलोनी से मुलहिका इलाकों के अवाम ने नाकिस सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम ने कहा अफसरान को दरख्वास्तें देकर थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बहावलपुर में सीवरेज की खराबी इस वक्त का बड़ा मसला बन चुकी है। गुंजान आबाद इलाके यजमान रोड इस्लामी कॉलोनी और इससे मुलहिका इलाकों के अवाम नाकिस सीवरेज सिस्टम से नाला हैं और अवाम ने सीवरेज सिस्टम की नाकामी पर एहतजाज किया। अवाम ने कहा कि कई माह से जारी सीवरेज की खराबी का यह सिलसिला तवील हो गया है। अफसरान को दरख्वास्तें देकर थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बहावलपुर में कोरोना ने शहर भर की ग्रीन बेल्ट्स को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। कोरोना के बायस पीएचए के मुलाजमीन घरों तक महदूद हो गए। ग्रीन बेल्ट्स पर लगे पौधे सूखने लग गए। कोरोना के बायस पीएचए का सिर्फ महदूद स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जिसके बायस बेशतर पौधे पानी की कमी का शिकार होकर सूखना शुरू हो गए। इमरजेंसी स्टाफ सिर्फ मरकजी ग्रीन बेल्ट्स पर पानी लगाकर ड्यूटी के फराइज से अंजाम दे रहा है। लिंक रोड की ग्रीन बेल्ट्स और गमलों में लगे पौधों को पानी न लगाने से पौधे खुश्क हो गए। कुछ जगहों पर बाकायदा निगहदाश्त न होने के बायस गमले चोरी भी हो गए। पीएचए की जानिब से शहर के मुख्तलिफ चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए 400 से ज्यादा गमले नस्ब किए गए थे। तमाम गमलों में सदाबहार पौधे लगाए गए थे जो पानी की कमी के बायस खराब हो गए। मियांवाली क्रिकेट स्टेडियम पिपला का तामीराती काम 2.5 साल में मुकम्मल न हो सका। क्रिकेट स्टेडियम का काम 8 माह में मुकम्मल किया जाना था। क्रिकेट स्टेडियम पिपला का तामीराती काम 2.5 साल में मुकम्मल न हो सका, जबकि तामीराती काम 8 माह में मुकम्मल किया जाना था। साबिका दौरे हुकूमत में क्रिकेट स्टेडियम का तामीराती काम शुरू हुआ। क्रिकेट स्टेडियम का तामीराती काम 7.5 करोड़ रुपए से मुकम्मल होना था। फंड बंद होने के बाद गुज़श्ता 1.5 साल से तामीराती काम बंद पड़ा है। शहरियों का कहना है कि पिपला का वाहिद क्रिकेट स्टेडियम भी नौजवानों को मुयस्सर नहीं। शहरियों ने कहा कि फंड्स जारी न होना मकामी सियासतदानों की नाकामी का सबूत है, जबकि मियांवाली के मुतादिद सियासतदान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक रसाई रखते हैं। उन्हें चाहिए कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फंड मंजूर करा के तहसील पिपला की पसमानदगी दूर करें। डेरा गाजी खान में नौसरबाज गिरोह सरगर्म। क़याबान सरवर में खातून को लूट लिया गया। बुजुर्ग खातून बैंक से पेंशन निकलवा कर घर जा रही थी। नौसरबाजों ने वरगला कर पेंशन के पैसे 14,000 और सोने की बालियां भी उतरवा ली। शाहरो बेगम नामी बुजुर्ग खातून रुकनाबाद कॉलोनी की रिहायशी है, जो अपनी पेंशन लेने के लिए नेशनल बैंक क़याबान सरवर आई थी। पेंशन निकलवा कर घर जा रही थी कि रास्ते में नौसरबाजों ने बुजुर्ग खातून को वरगला कर पेंशन के पैसे 14,000 और सोने की बालियां उतरवा कर फरार हो गए। और माह सयाम के मौके पर जहां हर्जी रू रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ है, वहीं मुल्तान के ख्वाजा सरा भी किसी से पीछे नहीं। मारूफ ख्वाजा सरा स्टेज आर्टिस्ट पिंकिश ने माह सयाम में शोबिस की तमाम तर सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, माह सयाम के मौके पर जहां हर शख्स रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ है, वही मुल्तान के ख्वाजा सरा जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। मुल्तान की मारूफ स्टेज आर्टिस्ट पिंकिश जो है वो सहरी और अफ्तारी अपने हाथ से ही कर बनाती हैं और फिर अपने साथ लोगों के साथ ही बैठकर जो है वो अफ्तार करती है। हमारे साथ मौजूद है पिंकिश। बताइएगा आप लोगों का रमज़ान कैसे होता है? बनाती भी रही बात कि सहरी और इफ्तारी खुद घर में बनाती हूँ और मुझे तो बहुत खुशी होती है और मैं तो बहुत इंतज़ार करती हूँ 11 महीने कि खुदा पाक इतना रहमत वाला महीना कब लेके आएगा और जिसमें मैं रोज़े रखूँ, नमाज पढ़ूँ और घर में सहरी बनाऊँ, इफ्तारी बनाऊँ। मुझे बहुत खुशी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें कि खुदा पाक इतनी गंदी मुसीबत हमारे सर से दूर कर दें और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबको मैं भी कहती हूँ सब दोस्तों को कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और खुदा पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मुल्तान की मारूफ आर्टिस्ट पिंकिश मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि दुआ गो हूँ कि इस मोहलिक वबा की इस माह के ज़रिए जो है वो वसीले से निजात जो है वो मुमकिन हो। और इसके साथ साथ खुसूसी दुआओं के साथ साथ जो माह रमज़ान जो है वो गुजारती और इस माह के पूरे रोज़े रखती और शहरियों को भी यही कहती हैं, पैगाम देती हैं कि वो भी इस माह में बिल्कुल दुआ गो हैं कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा से छुटकारा मिले। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रोही।